So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good evening to all of you. So yesterday we have discussed about the turbulent flow, and in turbulent flow we have discussed the shear, how to compute the shear stress in the turbulent flow, and by different various methods we have seen that according to the Boussinesq equation, what is the distribution of the shear stress, and then as per the Reynolds, what is the expression of the shear stress. And we have also discussed the application of the Prandtl mixing length in the derivation of the expression of shear stress by Reynolds method. Then we have discussed the velocity distribution, how to compute the velocity or in the smooth pipe or rough pipe. And then we have also discussed the whether our surface is hydrodynamically smooth, rough or transition by a parameter, that is k by delta star, where k is the height of roughness and delta star is the laminar sublayer thickness. So today I will discuss the one of the very important velocity distribution that will be followed. That is called 1/7 power law. That is applicable, of course, in the turbulent flow. And then I will discuss the how to compute the uh, Darcy-Weisbach friction factor in turbulent flow. In laminar flow, we have already discussed the Darcy-Weisbach friction factor is the function of Reynolds number, and in laminar flow we have seen that the relationship between the Darcy-Weisbach friction factor and Reynolds number. So in turbulent flow, what will be the expression of this friction factor for smooth and rough pipe? Then I will discuss the some problems based on this. So let us start. The firstly, I will discuss the another velocity distribution that is called 1/7 power law. So this is also called the velocity distribution for the turbulent flow, and the pipe is smooth. Then we can write U by U max, U by U max, that is equal to Y by R to the power 1/7. It is also called the 1/7 power law. तो ये पूछा जाता है कि टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा होता है, तो 1/7 power law, or we can also write U is equal to U max Y by R to the power 1/7. If it is not given, कुछ भी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तब हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि और जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैमिनार में हमने देखा था कि क्या था, पैराबोलिक था. लैमिनार फ्लो में हमने देखा था कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा था हमने पैराबोलिक देखा है. तो टर्बुलेंट में जो 1/7 पावर लॉ को भी फॉलो किया जाता है. अब फ्रिक्शन फैक्टर हमने देखा था कि लैमिनार फ्लो में हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि कैसे निकालते हैं. 64/RE से हम लोग डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं. और जो डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर है वो टर्बुलेंट फ्लो में भी हम लोग मेजर हेड लॉस जो निकालते हैं वो निकाल सकते हैं. दैट इज FLV²/2GD और FLQ²/12.1d5. बट द फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो वैल्यू जो होगी जो हम लोग लैमिनार फ्लो में लेते थे, मीन्स जो हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जब 2000 से कम होती थी उस वक्त लेते थे, वो नहीं रहेगा. अब वो चेंज हो जाएगा. तो वो क्या होगा, तो फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो अगर हम लोग लिखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं फॉर स्मूथ पाइप, अगर स्मूथ पाइप है हमारा, देन हम बोलेंगे कि जो हमारा डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा F, दैट इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. ये चीज तो हमने वहां भी देखा था. लैमिनार फ्लो में भी जो हमारा डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर था वो किसका था, फंक्शन रेनॉल्ड्स नंबर का ही था, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज था. एक्सप्रेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लैमिनार फ्लो में भी हमने देखा था कि जो डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर है वो रेनॉल्ड्स नंबर का ही फंक्शन था. टर्बुलेंट फ्लो में भी फॉर स्मूथ पाइप मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो फंक्शन होगा रेनॉल्ड्स नंबर का है, लेकिन बट एक्सप्रेशन चेंज होगा. क्या एक्सप्रेशन होगा, तो F इज इक्वल टू 0.316 डिवाइडेड बाई RE टू द पावर 1/4. अब ये भी है कि आपका ये जो एप्लीकेबल कब है, तो ये एप्लीकेबल है जब हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा हो और 1 × 10⁵ से कम हो.
तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 × 10⁵ से भी ज्यादा हो गया तो हम फिर दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाई RE टू द पावर 0.207। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो हो वो 1 × 10⁵ से ज़्यादा हो, या कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं कि 5 × 10⁴ से हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कहाँ तक हो, 1 × 10⁷। अगर इसके बीच में होगा देन वी विल अप्लाई दिस formula to compute the Darcy-Weisbach friction factor. Otherwise, we will apply this formula to compute the Darcy-Weisbach friction factor. अब इसी डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर को एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है निकुरेट्स, उन्होंने भी दिया था कि कैसे इसको निकाला जाए। तो एज पर निकुरेट्स इक्वेशन हम लोग इससे भी हम लोग जो है डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर को निकाल सकते हैं। और ये भी अलग अलग पाइप के लिए कैटेगराइज किया। पहला बोला गया कि फॉर स्मूथ पाइप के लिए क्या हो जाएगा, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपका फार्मूला है, लेकिन फार्मूले को याद रखना है। पहले मैंने बोला है कि फार्मूले को आपको विदाउट आप अगर फार्मूला नहीं याद है देन वी कैन नॉट अप्रोच द न्यूमेरिकल, उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ऐसा हो जाएगा जैसे हमें आंसर मालूम है, हमारे पास आंसर बुक भी है और हमारे पास पेन नहीं है, तो वी कैन नॉट रिप्लाई कि वॉट एवर आस्क्ड। सो आपका वही है कि आप फार्मूला आपके पास अगर नहीं है, आप जानते हो कि हाँ ये डार्सी-वेइसबach का फ्रिक्शन फैक्टर लगाएंगे देन वी कैन अप्लाई द हेड लॉस, और ये अलग भी होगा, लेकिन अगर याद नहीं है देन उस टाइम पे आप रुक जाओगे। तो ये फार्मूला जो है आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए जो एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है। सो एज पर निकुरेट्स ने जो दिया था कि हाँ स्मूथ पाइप के लिए क्या हो जाएगा, तो दैट इज 1/√f दैट इज इक्वल टू 2 log to the base 10 RE √f minus 0.8। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक बार सिंबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारा डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर है। RE जो है हमारा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, और यहाँ पे फिर f का फंक्शन है, ठीक है, RE × √f minus 0.8। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। लेकिन ये भी फिर इसके लिए बोला गया है कि ये हमारा जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो वो कितना हो, तो 5 × 10⁴ से रेनॉल्ड्स नंबर 4 × 10⁷ के बीच में अगर रहेगा तब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद फिर बात आया कि हाँ रफ पाइप के लिए क्या यूज किया जाए। स्मूथ पाइप के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन या तो ये एक्सप्रेशन या तो हम लोग इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो है हमारा रफ पाइप अगर हो जाएगा तो रफ पाइप के लिए हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है। तो फॉर रफ पाइप के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सो द रफ पाइप के लिए 1/√f दैट इज इक्वल टू 2 log to the base 10 यहाँ पे R/K प्लस 1.74। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है रफ पाइप। तो ये फार्मूले को हम लोग ये जो फार्मूला है ये भी हम लोग याद रखेंगे कि रफ पाइप के लिए हम लोग कैसे डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर निकालेंगे। सो दैट इज 2 log to the base 10 R/K। अब K क्या है, तो K को हमने कल बताया था कि क्या है, K जो है हमारा वो क्या है, हाइट ऑफ रफनेस। और R तो हमें मालूम है, R इज द रेडियस ऑफ द पाइप, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि स्मूथ पाइप के लिए और रफ पाइप के लिए कैसे डार्सी-वेइसबach फ्रिक्शन फैक्टर जो आपने का निकुरेट्स ने दिया था उस इक्वेशन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है कि थोड़ा सा एक और 2 एक्सप्रेशन है जिसको हमने नोट में लिख दिया है कि हाँ ये एक्सप्रेशन को भी आप लोग याद रखें कि अगर वंस वी नो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी, अगर हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग जान रहे हैं देन वी कैन अप्लाई फॉर स्मूथ पाइप के लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं Umax/Uaverage दैट इज इक्वल टू 1.33 √f + 1, और फॉर स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो हो तो Uaverage डिवाइडेड बाय U स्टार दैट इज इक्वल टू √8/f। जहाँ पे हम फिर से मैं एक बार कल बताया था मैंने कि U स्टार जो है हमारा क्या है, शेयर वेलोसिटी। हमारा U स्टार जो है क्या है, शेयर वेलोसिटी है, जिसको हमने बताया था कि क्या √τ0/ρ या τ/ρ जो हमने बताया था।
और जो है एफ तो हमारा मालूम ही है कि डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर है। तो अगर हमारे पास यू एवरेज और यू स्टार भी मालूम है तो वहां से भी हम लोग डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट भी अगर मैं लिख दूं कि ये आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, खूब पूछा जाता है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं नोट लगाऊं कि नोट में क्या है, तो पहला मैंने बोला क्या कि इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो में हमने लिखा था, बताया अभी कि इन केस ऑफ लैमिनार लैमिनार फ्लो में क्या होगा, तो डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा किसका फंक्शन होगा, तो सिर्फ डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा ओनली द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे जी हमने एक फंक्शन लिया है और ये रेनॉल्ड्स नंबर आर जो है हमारा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है। तो इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो हम लोग याद रखेंगे कि वेयर आर क्या है, आर इज द रेनॉल्ड्स नंबर, ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है। एफ तो हमें मालूम ही है कि डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर है। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो हमने दूसरा पॉइंट फिर हमें नोट में मैं ऐड करने जा रहा हूं। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो फंक्शन होगा रेनॉल्ड्स नंबर का तो होगा ही, हाइट ऑफ रफनेस का भी हो जाएगा। हमारा डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, तो रेनॉल्ड्स नंबर और हाइट ऑफ रफनेस। अब टर्बुलेंट फ्लो में अगर बात की जाए कि अगर स्मूथ पाइप है हमारा, तो यहाँ पे फिर अगर मैं बोलूं कि फॉर इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ पे फिर मैं दो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर स्मूथ पाइप, अगर टर्बुलेंट फ्लो में अगर हमारा स्मूथ पाइप है, मतलब कि हमारा पाइप जो है बिल्कुल स्मूथ है, इन दैट केस जो हमारा डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर होगा दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अगर हमारा स्मूथ बाउंड्री है या यहाँ पे पाइप की जगह पे अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म लिखा जाए स्मूथ बाउंड्री, तो स्मूथ बाउंड्री अगर है तो हमारा जो डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो सिर्फ किसका फंक्शन होगा, दैट इज आवर रेनॉल्ड्स नंबर। उसी तरह अगर रफ बाउंड्री है, अगर दूसरा जो है हमारा कि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो ही में अगर रफ बाउंड्री है, फॉर रफ बाउंड्री, अगर हमारा जो पाइप का जो बाउंड्री जो है वो रफ है, देन आवर जो डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो फंक्शन ऑफ द हाइट ऑफ रफनेस। अगर ट्रांजिशन है मतलब कि पाइप थोड़ा सा स्मूथ भी है और थोड़ा सा भी रफ है, तो जिसे बोला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में है, तो ट्रांजिशन स्टेट में अगर बोला जाएगा तो डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो फंक्शन होगा रेनॉल्ड्स नंबर का और हाइट ऑफ रफनेस का। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या क्या जो होगा, तो ये असर्शन रीजन में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद इसी में एक जो था कि डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर में लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का एक रिलेशन था जिसे बोला जाता है मूडीज डायग्राम। क्या बोला जाता है, मूडीज डायग्राम। उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगला हेडिंग है क्या हमारा, मूडीज डायग्राम। क्या होता है मूडीज डायग्राम, मूडीज डायग्राम बात करें तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर मालूम है या डिफरेंट एक पैरामीटर है, जो पैरामीटर है वाई एक्सिस पे आपका क्या रहेगा, आपका वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन फैक्टर रहेगा, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, रेनॉल्ड्स नंबर रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि मूडीज डायग्राम क्या है। तो मूडीज डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे आपका डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर और एक्स एक्सिस पे जो होगा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होगा। और डिफरेंट कर्व हो गए हमारे पास डिफरेंट कर्व होगा। लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक कर्व है, एक लैमिनार फ्लो के लिए अलग कर्व होगा और कुछ इस तरह का। लेट अस अज्यूम कि ये सब हमारा कर्व है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये हमारा k बाई, यहाँ पे जो वैल्यू जो होता है जिसे बोला जाता है k बाई डी इज इक्वल टू 0। जैसे k बाई डी 0 है मतलब कि हमारी हाइट ऑफ रफनेस 0 है, मतलब कि यहाँ पे ये लैमिनार फ्लो के लिए हो गया। उसी तरह हमारा k1 बाई d1 दूसरा कर्व, फिर k2 बाई d2, k3 बाई d3। तो या तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर और ये वाला वैल्यू मालूम है, मतलब कि डायमीटर ऑफ द पाइप और हाइट ऑफ रफनेस, तो हमने पहले क्या निकाल लिया k बाई डी, और रेनॉल्ड्स नंबर हमने निकाला हुआ है। तो उससे हमने क्या, एक कर्व को हमने सेलेक्ट किया और विद द हेल्प ऑफ दिस रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू को हम लोग रीड कर सकते हैं। उसी कर्व को हमने बहुत और थोड़ा सा अच्छे से दिखाया है। तो यही कर्व है जिसे बोला जाता है मूडीज डायग्राम। ये आपका क्या है, जो है आपका डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर कोरिलेट कैसे होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है। इस एक्सिस पे हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है, इस एक्सिस पे हम बोले या तो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या डार्सी वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर है। और डिफरेंट रिलेटिव रफनेस, जो k बाई डी की वैल्यू को मैंने बताया कि अलग अलग k बाई डी है, तो k बाई डी को बोला जाता है रिलेटिव रफनेस। क्या बोला जाता है, रिलेटिव रफनेस।
अब देख सकते हो कि डिफरेंट, अब ये वाला कर्व जो है वो लेमिनार फ्लो के लिए है, ये वाला कर्व, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कर्व है फॉर डिफरेंट रिलेटिव रफनेस, यहाँ पे आप देखा जाए तो k बाई डी की वैल्यू 0.0001, 0.005, 0.001, तो जो हमारी k बाई डी की वैल्यू आ रहा है उस कर्व को हमने सिलेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग रिनॉल्ड्स नंबर के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या डार्सी-वेइसबैच फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है कि एक निकुट्स ने ही एक रिलेशन दिया था जिसमें बोला गया था कि अगर जैसे बोला गया कि जैसे जैसे हमारा पाइप जो होगा वो ओल्डर होगा, मतलब कि पुराना होगा, तो हमारी रफनेस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, रफनेस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वो कैसे है, तो एज पर निकुट्स से एक रिलेशन है, एज पर एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, मैंने बोला कि एज पाइप बिकम्स ओल्डर हाइट ऑफ रफनेस विल बी इंक्रीज, जैसे जैसे वो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे पाइप जो होगा वो ओल्डर होगा, एज पाइप इज ओल्डर रफनेस विल इंक्रीज। और ये कुछ इस तरह का रिलेशन एक बताया गया था, KT इज इक्वल टू K नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, KT इज इक्वल टू K नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, जिसको इस इक्वेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जो इस इक्वेशन को बोला जाता है कोलब्रुक इक्वेशन। क्या बोला जाता है, कोलब्रुक इक्वेशन। कोलब्रुक के इक्वेशन को जो है ये इस इक्वेशन कोलब्रुक साहब ने दिया था इस इक्वेशन को, जिसमें KT K नॉट अल्फा और T क्या है, तो K नॉट जो है जिस टाइम पे इंस्टॉल किया गया है पाइप को उस टाइम पे कितनी रफनेस थी, तो K नॉट जो है वो क्या है, हाइट ऑफ रफनेस, हाइट ऑफ रफनेस एट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के वक्त कितनी हाइट ऑफ रफनेस है, और KT जो है आफ्टर सर्टेन टाइम T, जो कैपिटल T जब टाइम जो हो गया स्पेंड हो गया उस वक्त हाइट ऑफ रफनेस कितनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये KT की वैल्यू जो होगा वो K नॉट से ज्यादा ही होगा, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे पाइप ओल्डर होता जाएगा रफनेस विल इंक्रीज, रफनेस जो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, हाइट ऑफ रफनेस एट टाइम कैपिटल T। और अल्फा क्या है, तो अल्फा बताएगा कि रेट है, कि कितने रेट से हमारा क्या है, रेट रफनेस बढ़ रहा है, कितने रेट से हमारा रफनेस जो है वो बढ़ रहा है, किसमें, इन सर्टेन टाइम T टाइम में कितने रेट से ये बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया कि इस इक्वेशन को बोला जाता है कोलब्रुक इक्वेशन। क्या बोला जाता है, कोलब्रुक इक्वेशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा और कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा टर्बुलेंट फ्लो पे। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है आज के सेशन का, बोला जा रहा है कि व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप, एक पंप है जिसके पावर की हमें निकालना है कि कितना पावर होगा, जिसका डिस्चार्ज जो कैपेसिटी है वो दिया हुआ है आपका 500 लीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर, और जो पाइप जो इस पंप से कनेक्टेड है उसकी डायमीटर जो है वो दैट इज 50 सेंटीमीटर, रफ पाइप है। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रहे कि ये हमारा रफ पाइप है, पाइप जो हमारा रफ है ओवर ए लेंथ ऑफ 2 किलोमीटर, आपका लेंथ जो है वो कितना है पाइप का, वो 2 किलोमीटर है। टेक रफनेस हाइट एज 0.25 सेंटीमीटर, तो हमें पावर निकालना है। तो हमने पावर का एक्सप्रेशन हमने बताया था जब हमने पाइप फ्लो पढ़ा था, तो पावर क्या था हमारा, गामा इंटू क्यू इंटू एच एफ। अब एच एफ जो है ये हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस है वो एज पर डार्सी हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो एज पर डार्सी इक्वेशन, एज पर डार्सी वेइसबैच इक्वेशन क्या होता है, एज पर डार्सी वेइसबैच इक्वेशन HF इज इक्वल टू हमने बताया है क्या, FLV स्क्वायर बाई 2GD, FLV स्क्वायर बाई 2GD, या अगर हमारे पास डिस्चार्ज दिया हुआ है तो हम लोग एक और एक्सप्रेशन बताया था FLQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू D5। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग Q की वैल्यू मालूम है, हमें गामा मालूम है, सिर्फ हमें HF निकालना है। अब HF के लिए क्या चाहिए हमें, डार्सी वेइसबैच फ्रिक्शन फैक्टर, बिकॉज लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। अब F कैसे हम लोग निकाले, F के लिए हमने एक्सप्रेशन बताया है, F के लिए जो है रफ पाइप के लिए हमने बताया है ना एक्सप्रेशन, तो वो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो हमने क्या एक्सप्रेशन बताया है कि रफ पाइप के लिए 1 बाई रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ F दैट इज इक्वल टू 2 log 10 R by K प्लस 1.74। तो वहां से हम लोग डार्सी वेइसबैच फ्रिक्शन फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इक्वेशन लिखा है फॉर रफ पाइप के लिए हमने क्या बताया कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ F
दैट इज इक्वल टू 2 log टू द बेस 10 r बाई के प्लस 1.74। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेशन बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू 2 log टू द बेस 10। रेडियस आपका डायमीटर जो है पाइप की कितनी है, डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर मतलब कि 0.5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर डायमीटर जो है वो 0.5 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटी मतलब कि 0.25 मीटर डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ रफनेस। हाइट ऑफ रफनेस जो है वो कितनी है, तो वो जो आपकी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। तो या तो हम इसको अगर सेंटीमीटर में ही रखें तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पे भी जो हाइट ऑफ रफनेस है वो भी आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 25 डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ रफनेस 0.25 सेंटीमीटर प्लस 1.74। तो यहाँ से हम लोग इसके वैल्यू को अगर निकालें तो ये आपका हो गया 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 और ये वैल्यू हो गया 25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 1.74। तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 5.74। 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एफ जो है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू 5.74। तो यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 5.74 और इसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये वैल्यू जो आ गई 0.0, एफ की वैल्यू जो आ गई 0.0304। ये आपका डार्सी वेस्टबेस्ट फ्रिक्शन फैक्टर आ गया। अब जैसे डार्सी वेस्टबेस्ट फ्रिक्शन फैक्टर आ गया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हेड लॉस पहले निकाल लें। हेड लॉस क्या होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन दैट इज एफएल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी टू द पावर 5। हमने एफ की वैल्यू को निकाल लिया है, एफ कितनी है हमारी 0.0304। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 0.0304। लेंथ ऑफ द पाइप 2 किलोमीटर है मतलब कि 2000 इंटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 लीटर पर सेकेंड है। तो मीटर क्यू में चेंज करेंगे तो 1 लीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर क्यू पर सेकेंड, मतलब कि ये हो गया 0.5 मीटर क्यू पर सेकेंड। तो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डायमीटर। डायमीटर अभी आपका पाइप का दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब कि 0.5 मीटर। तो 0.5 टू द पावर 5। तो यहाँ से हम लोग हेड लॉस निकाल लें। हेड लॉस की वैल्यू जो हो जाएगी 0.0304 इंटू 2000 इंटू 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू 0.5 टू द पावर 5। तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई हेड लॉस, आप सब लोग चेक करो कितना आ रहा है 40.198। देखिए सही है या गलत है। तो यहाँ से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू गामा क्यू इंटू एच एफ। तो गामा क्यू एच एफ हो जाएगा, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डिस्चार्ज इज 0.5 इंटू एच एफ इज 40.198। तो यहाँ से वैल्यू जो पावर जो आ गई वो कितनी हो गई 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.5 इंटू 40.198। तो ये वैल्यू जो आ गई 197.9 वाट। तो यहाँ से 1000 से मैं डिवाइड अगर कर दूं तो ये वैल्यू जो आ गई 197.17 किलोवाट। ये हमारा पावर की वैल्यू आ गई। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जो की है इस क्वेश्चन का वो हमें सोचना था क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पाइप फ्लो से लिया गया था, पाइप फ्लो में, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो हेड लॉस जो है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन जो है या मेजर हेड लॉस जो बोला जाए उसको हमें निकालना था। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता थी, सिर्फ हमें डार्सी वेस्टबेस्ट फ्रिक्शन फैक्टर की। तो वो रफ पाइप के लिए क्या होगा उसको हमने निकाला और यहाँ से हमने पावर को निकाला। दूसरा क्वेश्चन जो है आज के सेशन का जो मैंने लिया है टर्बुलेंट फ्लो इन द पाइप से, दैट इज ए 60 सेंटीमीटर डायमीटर रफ पाइप। फिर से रफ पाइप है, कैरीज वाटर, वाटर कैरीज कर रहा है। द वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द सेम पॉइंट इज 11.25 पर सेकेंड। To determine this parameter, we have to find the mean velocity of the flow, friction factor, average shear stress at the wall and the average height of roughness। ये चार चीज हमें निकालना है। अब देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। पहले सबसे पहले सब लोग अटेम्प्ट करिए, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए। आपका डायमीटर जो है सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करो। डायमीटर जो है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। रफ पाइप है, कैरीज वाटर। द वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड।
आपका पाइप वॉल से जो है 4 सेंटीमीटर पे, मतलब कि लोकल वेलोसिटी जो है व्हेन y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आपकी y की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर जब है, तब हमारी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आपकी जनरल या लोकल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। और बोला जा रहा है कि जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy की भी वैल्यू दे दी गई है। du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट यही तो होता है du/dy, वो कितनी है 11.25 पर सेकेंड, 11.25 पर सेकेंड। अब हमने कल देखा था कि हमें जो है हमें निकालना क्या है, शेयर स्ट्रेस, सारा चीज निकालना है। तो हमने कल बताया था कि शेयर स्ट्रेस जो है, शेयर स्ट्रेस जो हमने बताया था कि क्या था, रो इंटू यू डैश इंटू वी डैश, मैंने बताया था रिनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट से। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यू डैश और वी डैश जो है वो इक्वल हो जाता है, मैंने बताया था। तो वहां से क्या आ गया था, जो जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा एल डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ से क्या आया था, टॉ को हम लोग ने लिखा था रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। अब हमने फिर बताया था क्या कि पैरेंटल मिक्सिंग ने लेंथ जो दिया गया था एल इज इक्वल टू क्या दिया गया था के इंटू वाई। तो हमने यहाँ पे अगर रख देना है तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू के स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर। कल आप डेरिवेशन अगर देखा होगा तो यहाँ पे याद आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर, डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टॉ बाई रो के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी यू बाई डी वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी यू बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग्स। सो टॉ बाई रो को मैंने बताया था कि क्या है हमारा शेयर वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यू स्टार डिवाइडेड बाई के इंटू वाई, यू स्टार डिवाइडेड बाई के इंटू वाई। अब यहाँ पे डी यू बाई डी वाई दिया हुआ है, आपका डी यू बाई डी वाई दिया है, के की वैल्यू हमें मालूम रहता है कि क्या है, जो है वो जो बताया गया था ये के, और जो हाइट ऑफ रफनेस पूछा गया, मैं पहले बोला कि ये स्मॉल के है और हाइट ऑफ रफनेस को मैं कैपिटल के से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के की वैल्यू जो है वो मालूम है, कितनी हम लेते हैं 0.4। मैंने बताया था कल कि के की वैल्यू जो होता है, जो मैंने बताया था कारमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को हम लोग लेते हैं 0.4। तो यहाँ से के भी मालूम है, वाई भी मालूम है, तो यहाँ से यू स्टार हम लोग निकाल लेंगे। तो यू स्टार कितनी हो जाएगी, यू स्टार इज इक्वल टू के इंटू वाई इंटू डी यू बाई डी वाई। अब के की वैल्यू मैंने बताया कि 0.4, वाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब कि 0.04 इंटू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई कितना है 11.25। तो यहाँ से हम लोग शेयर वेलोसिटी निकाल सकते हैं 11.25। तो इसके वैल्यू को हम लोग अगर निकाल ले तो 0.4 इंटू 0.04 इंटू 11.25, तो ये वैल्यू जो आ गई यू स्टार शेयर वेलोसिटी दैट इज 0.18। अब यू स्टार हम लोग जानते हैं क्या होता है, यू स्टार इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ टॉ बाई रो दैट इज इक्वल टू 0.18। अब स्क्वायर कर दो तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस हम लोग अगर निकाल लेंगे कितना 0.18 का होल स्क्वायर इंटू 1000। तो यहाँ से हम लोग शेयर स्ट्रेस निकाल लिए, कितना आ गया 0.18 का स्क्वायर इंटू 1000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 32.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शेयर स्ट्रेस। तो पहला पार्ट तो यही पूछा था, एक पार्ट में कहीं पूछा गया है एवरेज शेयर स्ट्रेस एट द वॉल, तो कितना हो गया शेयर स्ट्रेस दैट इज 32.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, तो शेयर स्ट्रेस हमने निकाल लिया। अब हम लोग ये भी जानते हैं हमने एक्सप्रेशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमने देखा था कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंड रफ पाइप, अगर हमारा पाइप रफ पाइप है तो हमने देखा था एक एक्सप्रेशन क्या, u बाई यू स्टार इज इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 y बाई के प्लस 8.5। अगर आप रिकॉल करोगे कल के लेक्चर को तो ये हमने देखा था। अब हमने यू स्टार निकाल दिया है, लोकल वेलोसिटी हमारे पास मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे हाइट ऑफ रफनेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये निकाल लीजिए आप, हमारे पास लोकल वेलोसिटी कितना है, लोकल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई हमने अभी शेयर वेलोसिटी निकाला है कितना, तो शेयर वेलोसिटी जो हमने निकाला है 0.18 मीटर पर सेकेंड। सो 0.18 दैट इज इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10। y की वैल्यू कितनी है, तो y जो है हमारा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल। सो y की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर मतलब कि 0.04 डिवाइडेड बाई k प्लस 8.5। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सबसे पहले तो 3 बाई 0.18 की वैल्यू निकाल ले, 3 बाई 0.8
तो ये वैल्यू आ गया 16.67 और उसमें से -8.5 अगर मैंने कर दिया -8.5 तो ये बच गई 8.167 और डिवाइडेड बाई 5.75 डिवाइडेड बाई 5.75 तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.42 मतलब कि log टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई k दैट इज इक्वल टू 1.42 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1.42 log को अगर हमने हटाया तो 10 टू द पावर 1.42 अगर हमने रखा तो क्या आ गया वैल्यू दैट इज 26.303 तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ गई 0.04 डिवाइडेड बाई 26.303 यूनिट का ध्यान रहे सारा चीज मैंने मीटर में रखा है तो ये k की वैल्यू भी जो आएगी वो कितने में आएगी मीटर में 0.04 डिवाइडेड बाई 26.303 तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ गई 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 या तो हम लोग लिख सकते हैं क्या k की वैल्यू 1.52 mm 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 आ रहा है ये वैल्यू तो उसको हम लोग 1.52 mm भी लिख सकते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास आ गया हाइट ऑफ रफनेस कितना 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर या 1.52 mm मतलब कि हाइट ऑफ रफनेस हमने निकाल लिया दूसरा पार्ट। अब एक उसके बाद क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में दो पार्ट हमने निकाल लिया क्या क्या निकाल लिया हमने शियर स्ट्रेस निकाल लिया और दूसरा एक पूछा जा रहा था हाइट ऑफ रफनेस। अब फ्रिक्शन फैक्टर जो है तो फ्रिक्शन फैक्टर के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं फ्रिक्शन फैक्टर कैसे है रफ पाइप के लिए मैंने बताया है रफ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10 R/K 1 + 1.75 k की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है तो वहां से निकालिए तो फॉर रफ पाइप तो हमने अभी देखा है कि 1/√f दैट इज इक्वल टू 2 log टू द बेस 10 R/K प्लस 1.74 तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर भी निकाल सकते हैं 2 log 10 R की वैल्यू कितनी है तो रेडियस जो है डायमीटर ऑफ द पाइप जो है वो 60 सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर मतलब कि रेडियस जो हो गया वो 30 सेंटीमीटर तो 30 मतलब कि 0.3 डिवाइडेड बाई 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में हमने लिख रखा है प्लस 1.74 तो यहाँ से इसकी वैल्यू को पहले हम लोग निकाल ले 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 और ये वैल्यू जो हो गया 0.3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.52 प्लस 1.74 ये वैल्यू जो आ गई 6.33 तो यहाँ से f की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ गई 1/√f है तो रूट f जो हो जाएगा 1/6.33 1 डिवाइडेड बाई 6.33 तो ये वैल्यू कितनी आ गई और इसका स्क्वायर तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो f की वैल्यू जो आ गई वो 0.025 ये हमारा डार्सी-वेशबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर आ गया। अब हम तीसरा पार्ट यही था क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.025 तो हमने ये भी निकाल लिया है। अब पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का भी हमारे पास एक्सप्रेशन है तो वहां से हम लोग क्या करेंगे तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए कौन सा एक्सप्रेशन हमें लगाना है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे अभी हमने बताया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है तो हमने बताया कि u स्टार डिवाइडेड बाई u एवरेज दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f/8 ये तो हमने बताया है अभी। अब आप देखोगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है हमने बताया था यहाँ पे u स्टार नोट में शायद हमने लिखा था एक चीज देखिए यहाँ से हमने वो चीज को हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u स्टार डिवाइडेड बाई u एवरेज दैट इज इक्वल टू f/8 तो यहाँ से आप निकाल लो u स्टार मालूम है u एवरेज मालूम है हमारे पास तो यहाँ से हम और सॉरी u एवरेज निकालना है तो u एवरेज क्या हो जाएगा u एवरेज इज इक्वल टू आपका u स्क्वायर यहाँ पे निकाल लो u स्टार हमने निकाला है कितना क्वेश्चन में तो u स्टार जो है वो 0.18 डिवाइडेड बाई u एवरेज दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f/8 f की वैल्यू कितनी है 0.025 तो 0.025 डिवाइडेड बाई 8 तो यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा वो भी हमारा निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.025 तो एवरेज वेलोसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई 3.22 मीटर पर सेकेंड तो सारा चीज हमने निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन जो है ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप
एक पाइप है जिसकी डायमीटर जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, हैज ए रिलेटिव रफनेस। रिलेटिव रफनेस जो है वो कितना है, d/k जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो कितना है 100। रिलेटिव रफनेस जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए रिलेटिव रफनेस की वैल्यू जो है वो क्या है आपका 100 है। आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस द रिलेटिव रफनेस ड्रॉप्स टू 80। आपका क्या हो गया रिलेटिव रफनेस, तो पहले तो d/k निकाल लो, d/k ऑफ 100 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.2 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे जो है आपका एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन मान लिया कि मैंने 0 निकाला k0, तो वो कितनी हो जाएगी, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू जो आ गई 2 × 10⁻³ आपका है। और इसी तरह KT फिर निकाल लो आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद जो है ये रिलेटिव रफनेस ड्रॉप्स टू 80 हो गया है, तो वहां से आप KT निकाल लो। टाइम जो है वो कैपिटल T जो है वो कितना है, कैपिटल T जो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम वो कितना है 10 साल 10 ईयर। और हमने बताया है कि एक एक्सप्रेशन हमने बताया था क्या, KT = K0 + α_t। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, वही चीज क्वेश्चन में बोला गया है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ रफनेस। तो रेट ऑफ रफनेस तो अल्फा ही तो है, वो क्या हो जाएगा KT - K0 डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रफनेस निकालेंगे। जल्दी से निकाल के बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से निकालिए कितना आ रहा है। आप KT निकाल लो सबसे पहले, KT की वैल्यू को निकाल के और बताइए कितना आ रहा है रेट ऑफ रफनेस। हमारा K0 जो है वो क्या है, तो K0 को अगर हम लोग सेंटीमीटर में ही निकालें तो सेंटीमीटर में ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में जो होगा K0 की वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पे हमारा क्या होगा, तो d/k, और ये जो है आपका कितना है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.2। अब जो KT जो निकालेंगे आफ्टर टाइम आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि KT जो होगा आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स KT की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो गई है ऑफ 80, इसका 80 है, मतलब क्या हो गया, जो डायमीटर जो है वो कितना 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 80, मतलब ये कितना आ गया 0.25। अब KT भी हमने निकाल लिया, K0 भी निकाल लिया। हमने देखा है कि जो आपका जो हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ रफनेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ रफनेस क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी KT - K0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, KT की वैल्यू जो है वो 0.25 - 0.20 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आ गया आपका 0.25 माइनस, अगर इस वैल्यू को निकाला जाए 0.25 - 0.20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 5 × 10⁻³ इस रेट से हमारा क्या है जो है वो हाइट ऑफ रफनेस जो है वो बढ़ रहा है 5 × 10⁻³ और या 0.005, तो इस रेट से हमारा जो है बढ़ रहा है।